میں آپ کے اس خطرناک فیصلے سے بہت فخر مند ہوں۔ ان لوگوں نے آپ کے والد علی ابن ابی طالب سے بھی دھوکہ کیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میرے اچھے مشورہ دینے والے ہیں، میں یہ جانتا ہوں، لیکن میں نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں اپنے گھر والوں کو ساتھ لے جاؤں گا۔ مجھے لگتا ہے میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ واقعی جانے پر اڑے ہوئے ہیں تو اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے خوف ہے کہ آپ قتل کر دیے جائیں گے۔ پھر ابو سعید آئے، انہوں نے کہا، دیکھیے حسین، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ میں نے آپ کے والد سے سنا تھا کہ یہ لوگ جو آپ کی حمایت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان میں صبر نہیں ہے، ان میں تلوار کے سامنے مضبوطی نہیں ہے، یہ آپ سے دھوکہ کریں گے۔ لیکن پھر بھی حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، اپنے فیصلے پر مطمئن تھے۔ ابو سعید چلے گئے۔ وہ صحابہ جو بزرگ تھے، تجربہ رکھتے تھے، حالات جانتے تھے، علی ابن ابی طالب کے ساتھ رہ چکے تھے، حسین کے والد کو جانتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب تھے۔ وہ سب حسین کو مشورہ دے رہے تھے کہ کوفہ نہ جائیے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے راضی ہو، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ 72 لوگ تھے، اور کچھ کہتے ہیں کہ 73 لوگ تھے، جن میں عورتیں، بچے اور کچھ سپورٹرز تھے۔ وہ کوفہ کی طرف چلے۔ جب وہ کوفہ کے قریب پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ مسلم ابن عقیل اب وہاں نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کافی پہلے شہید کیے جا چکے تھے۔ ہانی ابن عروہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی قتل کیے جا چکے تھے۔ اور کوفہ کے وہ 18,000 لوگ کہاں تھے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ حسین کا ساتھ دیں گے؟ وہ اچانک ہوا میں کہاں غائب ہو گئے؟ حسین کو وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ اب راستہ بدل چکا تھا۔ کوفہ کی امید کوفہ کے دھوکے میں بدل چکی تھی۔ خط لکھنے والے چپ تھے، وعدے کرنے والے غائب تھے، اور سامنے ایک ایسی زمین تھی جس کا نام سن کر دل کانپ اٹھتا ہے، کربلا۔ یہ زمین کون سی ہے؟ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ کرب اور بلا، یہیں سے وہ داستان شروع ہوتی ہے، جہاں پیاس صرف جسم کی نہیں تھی، حق بھی پیاسا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ایک ایسے مقام پر تھے جہاں نہ کوفہ والوں کی پرومسڈ سپورٹ تھی، نہ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، نہ ہانی ابن عروہ۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابن زیاد کا لشکر تھا، جو انہیں یزید کی بیعت پر مجبور کرنا چاہتا تھا۔ اسی وقت حضرت حسین نے ان لشکری نمائندوں کے سامنے 3 درخواستیں رکھی۔ انہوں نے کہا، دیکھو، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں، میں مدینہ واپس چلا جاتا ہوں، یا مجھے اسلام کی سرحدی زمینوں میں سے کسی جگہ جانے دو جہاں میں اللہ کے حکم سے شہید ہو کر مر جاؤں، یا مجھے یزید کے پاس خود جانے دو اور میں اپنا معاملہ اس کے سامنے پیش کر دوں۔ لیکن انہوں نے تینوں باتیں رد کر دی۔ حکم ہے، وہ واپس نہیں جا سکتے، نہ مدینہ، نہ سرحد، نہ یزید سے سیدھی ملاقات۔ انہیں یہیں روکو، ان سے بیعت لو۔ ابن زیاد نے ایک فوج بھیجی جس کا سردار حر ابن یزید تھا۔ یہ 1000 کا لشکر تھا جو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے لیے بیعت پر مجبور کرنے آیا تھا۔ لیکن حر ابن یزید کچھ اور ہی مزاج کا آدمی تھا۔ جب وہ حسین ابن علی کے پاس آیا تو اس نے اپنے آپ کو ان سے کچھ فاصلے پر رکھا۔ وہ کوشش کرتا کہ ان کے بہت قریب نہ آئے۔ وہ ان کا پیچھا کرتا۔ اگر حسین دائیں جاتے تو وہ دائیں جاتا، اگر حسین بائیں جاتے تو وہ بائیں جاتا، لیکن پھر بھی وہ کچھ فاصلہ بنائے رکھتا۔ اے حسین، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے نبی کے گھرانے پر تلوار اٹھے، تو پھر ہمیں جانے دو۔ میں اپنے حکم سے بندھا ہوا ہوں۔ انسان حکم سے نہیں، اپنے ضمیر سے پہچانا جاتا ہے۔ حر کے دل میں ایک جھکاؤ تھا۔ وہ دل سے اس کام کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے پوری طرح رشتہ توڑنا بھی مشکل تھا۔ ابن زیاد نے یہ محسوس کر لیا کہ حر کا دل کمزور پڑ رہا ہے، اس لیے اس نے ایک اور بڑا لشکر بھیجا، 4000 لوگوں کا، جس کا سردار عمر ابن سعد تھا۔ اس سے کہا گیا، جاؤ، اگر تم نہیں گئے تو یہ زمینیں جو میں تمہیں دے رہا ہوں کسی اور کو دے دی جائیں گی۔ یہاں وہ لوگ تھے جو دنیا کے وعدوں کے لیے ظلم اور برائی کرنے پر راضی ہو گئے۔ عمر ابن سعد اس سودے پر راضی ہو گیا اور 4000 لوگوں کی فوج کے ساتھ نکل پڑا۔ حسین ابن علی بے سہارا پھنس گئے۔ وہ جا نہیں سکتے تھے کیونکہ ابن زیاد راستے بند کر رہا تھا اور کوفہ کو گھیر رہا تھا۔ لوگوں کے لیے اندر آنا مشکل تھا اور باہر جانا بھی سخت تھا، لیکن حسین کچھ دنوں کی مہلت لینے کی کوشش کر رہے تھے۔
वो अपने साथियों से मशवरा कर रहे थे। इस हालात में मुझे क्या करना चाहिए? साथ ही वो उन्हें मजबूत भी कर रहे थे। ये मुश्किल घड़ी थी, सख्ती का वक्त था, आजमाइश का वक्त था। ऐसे वक्त में इंसान क्या करता है? इब्ने जियाद की फौजें बढ़ती जा रही थी। 1 और 1000 हुसैन इब्ने नुमैर के, फिर 1 और 1000, फिर उमर इब्ने साद के 4000। हजारों लोग इस मुकाबले के लिए तैयार हो रहे थे। किसके खिलाफ? सिर्फ 72 लोगों के एक छोटे से गिरोह के खिलाफ। उनमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, और सबके सर पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु थे। फिर 7 मुहर्रम का दिन आया। इब्ने जियाद ने हुक्म दिया कि हज़रत हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथियों को फुर्रात के पानी तक ना पहुंचने दिया जाए। इब्ने साद ने पानी के रास्ते पर 500 सवार तैनात कर दिए और हुसैन के साथी 3 दिन तक पानी से महरूम रहे। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये दिल तोड़ देने वाली सख्ती थी। बच्चे खेमों में थे, औरतें खेमों में थी, प्यास बढ़ रही थी। फुर्रात करीब था लेकिन पानी तक रास्ता बंद था। फिर 9 मुहर्रम का दिन आया। हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु ने समझ लिया कि अब हमें और मोहलत नहीं मिलेगी। वो अब सब्र नहीं करेंगे, वो जंग के लिए बहुत बेचैन है। फिर हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों से बात की। उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द से शुरू किया। हर तारीफ अल्लाह के लिए है, चाहे मुश्किल हो या आसानी, चाहे आराम के दिन हो या सख्ती के दिन। आराम में अल्लाह को याद करो, अल्लाह मुश्किल में तुम्हें याद रखेगा। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम अपने लोगों से कह रहे थे, अल्लाह की नेमत को मत भूलो। हम अब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें सुनने की कुव्वत, देखने की कुव्वत और दिल दिया। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे लगता है कि दुश्मन के साथ हमारा दिन कल होगा। ये रात तुम पर आ चुकी है। फिर हुसैन आगे बढ़े और कहने लगे, अल्लाहु अकबर। लोगों ने कहा, हुसैन क्या हुआ? उन्होंने कहा, मैंने एक फरिश्ता देखा है, एक सवार की शक्ल में। उसने मुझे बताया है कि लश्कर आ रहा है और मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। लोगों ने कहा, हुसैन आपने क्या देखा? दूसरी बार उन्होंने कहा, मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फैसला देखा। उन्होंने एक ख्वाब देखा और जिस चीज ने उन्हें जगाया वो ये था कि उनकी बहन भागती हुई और चीखती हुई बाहर आई क्योंकि दुश्मन आगे बढ़ रहे थे। उस रात हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम आदमियों को जमा किया और कहा, ऐ लोगों, जान लो कि वे सिर्फ मुझे चाहते हैं, तो तुम सब वापस क्यों नहीं चले जाते? तुम सब वापस क्यों नहीं चले जाते और मुझे छोड़ दो? आपके बाद हमारे लिए जिंदगी नहीं। फिर हुसैन अलैहिस्सलाम मुस्लिम इब्न अकील के घराने की तरफ मुड़े और कहा, ऐ मुस्लिम के घराने, तुम्हारे घराने ने कुर्बानी दे दी है क्योंकि मुस्लिम शहीद हो चुके हैं। तुम वापस क्यों नहीं चले जाते? ऐ हुसैन, लोग क्या कहेंगे कि तुमने अपने सरदार को छोड़ दिया सिर्फ इस दुनिया में जीने के लिए? अल्लाह की कसम, ये कभी नहीं हो सकता। ये रात करबला की सबसे गहरी रात थी। खेमों में बच्चे थे, औरतें थी, मर्द इबादत में थे और मौत कल सुबह का इंतजार कर रही थी। 10 मुहर्रम, अशूरा का दिन। एक तरफ हजारों का लश्कर, दूसरी तरफ हुसैन अलैहिस्सलाम के 72 वफादार। बैटल ऑफ करबला 10 मुहर्रम 61 हिजरी को लड़ी गई, जहां हजरत हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम और उनका छोटा सा काफिला यजीद की तरफ से भेजी गई फौज के सामने था। भाईजान, ये आवाजें? दुश्मन आगे बढ़ रहा है। क्या वक्त आ गया? बहन, सब्र। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। करबला में सिर्फ मर्दों का इम्तिहान नहीं था, यहाँ औरतों का सब्र भी तारीख बनने वाला था। ऐ लोगों, सोचो मैं कौन हूँ? क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं? क्या तुमने मुझे खत नहीं लिखे? क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया? अगर तुम मुझे नहीं चाहते तो मुझे वापस जाने दो। वो सच कह रहे हैं, हमने उन्हें बुलाया था। चुप रहो, हुक्म है। लेकिन ये रसूल अल्लाह के नवासे हैं। आज हुक्म के सामने रिश्ता मत याद करो। मैं किस तरफ हूं? हुक्म की तरफ या हक की तरफ? दुनिया की तरफ या आखिरत की तरफ? ऐ फर्जंदे रसूल, मैं वही हूँ जिसने आपका रास्ता रोका था। क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? जो अल्लाह की तरफ लौट आए, अल्लाह उसे दूर नहीं करता। मुझे इजाजत दीजिए, मैं सबसे पहले अपनी जान पेश करूं। हुर ने दुनिया का लश्कर छोड़ा और हक का काफिला पकड़ लिया। करबला ने दिखाया कि जब तक सांस बाकी है, तौबा का दरवाजा बाकी है। फिर जंग शुरू हुई। सबसे पहले हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु के घराने के जवान आगे बढ़े।
जो शख्स निकला वो अली अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। वो हुसैन अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े बेटे थे। उस वक्त उनकी उम्र 19 साल थी। वो बाहर आए और शेर की तरह लड़े। क्यों? क्योंकि वो अली के नवासे थे और हमजा के घराने से थे। वो शेर की तरह लड़े, यहाँ तक कि दुश्मनों ने उनके हाथ काट दिए और उन पर वार किए। जब उनकी आखिरी सांसें चल रही थी, हुसैन ने उन्हें अपनी बाहों में लिया और कहा, ऐ मेरे बेटे, क़यामत के दिन तुम्हारे नाना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारी शहादत की गवाही देंगे। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिश्तेदार आगे बढ़े। ये आम लोग नहीं थे, ये सहाबा थे। ये वो लोग थे जिन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिलकर जंग की थी। उनमें से 4 आगे गए, यहाँ तक कि वो शहीद कर दिए गए। फिर हसन अलैहिस्सलाम के बेटे आगे आए। वो बहुत खूबसूरत जवान थे। वो लड़े, यहाँ तक कि दुश्मनों ने उनके सर पर वार किया। जब उनके सर पर वार हुआ तो उन्होंने कहा, या अल्लाह। फिर कहा, ऐ मेरे चचा। हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उन्हें अपनी बाहों में ले लिया। उन्होंने कहा, ऐ मेरे बेटे, आज तुम्हारा चचा इतना मजबूर है कि तुम्हारी पुकार का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि उसके दुश्मन बहुत ज्यादा हैं और उसके दोस्त बहुत कम हैं। लेकिन अल्लाह की कसम, आज के बाद तुम्हें किसी को पुकारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक के बाद एक हुसैन अलैहिस्सलाम के घराने के लोग शहीद होते चले गए, यहाँ तक कि सिर्फ 2 लोग रह गए, अब्बास और हुसैन अलैहिस्सलाम। फिर अब्बास को भी शहीद कर दिया गया। फिर हुसैन अलैहिस्सलाम लड़े। वो इतनी बहादुरी से लड़े, लेकिन 3 दिन से उन्होंने पानी का एक घूंट भी नहीं पिया था। आखिरकार वो पीछे हटे और अपने खेमे में गए। उनका एक छोटा बेटा था, अब्दुल्ला। हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि उनका वक्त करीब आ चुका है। उन्होंने अपने बेटे को बाहों में लिया, उसे चूमने लगे, उसे सीने से लगाने लगे। कूफा के लोगों में से एक ने तीर चलाया। वो तीर अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गर्दन में लगा। हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला को जमीन पर रखा और अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, हमें अपने फैसले पर सब्र अता फरमा। अल्लाह की कसम, मैंने हुसैन जैसा बहादुर आदमी कभी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि हुसैन जानते थे कि उनकी मंजिल जन्नत है। वो जानते थे कि जन्नत सिर्फ कुछ लम्हों की दूरी पर है। फिर हुसैन खड़े हुए। करीब एक दरिया था और उन्हें पता था कि उनका वक्त करीब है। वो पानी पीने के लिए दरिया की तरफ चले। कूफा के लोगों में से एक ने तीर चलाया। तीर लगा और हुसैन जमीन पर गिर गए। जब वो जमीन पर गिरे तो कूफा के लोगों ने उन्हें घेर लिया। हुसैन कह रहे थे, मुझे कुछ पानी दे दो। कयामत के दिन तुम क्या करोगे? जब तुम मेरे नाना के पास जाओगे और उनसे हौज पर पानी मांगोगे, तो कयामत के दिन तुम क्या करोगे? रिवायत में आता है कि यह मंजर इतना दिल हिला देने वाला था कि कई लोग एक कदम पीछे हट गए। यहां तक कि शिमर ने कहा, किस बात का इंतजार कर रहे हो? इन्हें खत्म करो। सोचो ये मंजर कैसा होगा। हुसैन अलैहिस्सलाम के घर वाले, उनकी औरतें, उनकी बीवी, उनकी बेटी, उनकी बहन सब ये देख रही थी। फिर वो लोग उन पर गिद्धों की तरह टूट पड़े। उन्होंने हुसैन पर 60 मरतबा वार किया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के पास कुछ लोगों के लिए एक खास मकाम होता है और अक्सर वो लोग अपने अमल से उस मकाम तक नहीं पहुंच पाते, तो अल्लाह उन्हें आजमाइशों और तकलीफों से गुजारता है। फिर कूफा के लोगों में से एक ने उनका सर पकड़ा और दूसरे ने उनका सर जिस्म से जुदा कर दिया। ये कौन सा सर था? ये वो सर था जिसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूमा करते थे। ये वो सर था जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने पर रखा करता था। ये वो सर था जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में रखा करता था। ये उस वक्त जमीन पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए सबसे महबूब सर था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने हुसैन को कत्ल करने के बाद घोड़ों से उनके जिस्म मुबारक को रोंदवाया। अल्लाह ने इन लोगों को ये तौफीक भी ना दी कि वो हुसैन अलैहिस्सलाम को दफन करते। यहाँ तक कि बनु असद आए और उन्होंने हुसैन का जिस्म और बाकी लाशों को दफन किया। जब कूफा के लोगों को पता चला तो उन्होंने उस जगह पर पानी बहा दिया जहाँ लाशें दफन की गई थी। फिर बनु असद के एक बदवी आदमी इस जगह आए। ये कौन सी जगह थी? ये जगह करबला थी।